can unmute himself. All right, Mala? Co-host can unmute himself. Okay, our speaker today is a very illustrious person, Dr. Anuradha Jaju. As I had put on the card itself, she is winner of the women. I'll just come to winner of the Woman of the Year award in 2019. Now that's a very, very nice and illustrious thing by itself, because one person आवाज कट रही है क्या मेरी? ठीक है. Now I'd like to just read out a short brief. Dr. Anuradha Jaju, an entrepreneur, psychological counselor, and an active women activist of Hyderabad's Maheshwari Samaj. She was born in 1978 in Varanasi. She obtained the PhD degree in environmental science. I think from there she realized that we human beings also need a lot of counseling. So she's moved into that. Then she trained in psychological counseling from the renowned institution of Bangalore, did her MA in psychology, and now she has set up an advisory center called Talk and Share in Hyderabad. Dr. Jaju established Eagle Data Solutions, a data management company. She passed the coding and billing examination. My gosh, is there no examination that you don't pass? Entrepreneur management course. She received a Golden Sachs diploma. She's received honorary awards like Saksham Nari and Women of the Year. She's editor of RGA Mukpatra since the last three consecutive years. She's also handling the work of coordinating the literary committee of All India Maheshwari Mahila Sangathan. Well, she's obviously a very good motivational speaker. That's why she has so many things to her credit. But there are only 24 hours. You need to sleep for 6 hours at least. Where do you find the time to do so many things? I don't know, really. Well, you'll have to tell us now all about this. I also want to tell you that she comes from a very illustrious family. She's reached such heights, and we know another person who is also very talented, an electronics engineer, helped set up her husband in business, our very own district treasurer, Mala Rishi. She's her sister. So the entire family is illustrious, and I'm very happy to invite you, Anuradha ji, to this seminar of ours. We want to learn about interpersonal relationships, especially these days when we are all locked up together. You know, can I just say? Yeah. Today, when you have joined me with her, I would just like to say that Anuradha's papa is a scientist. He was a scientist. And my interest in electronics and physics was because of him. Very good. That's very somebody shared the screen. Can you please check it out? Who is the person? I don't know, Nitin. Somebody called Nitin has done something on the screen. He's not my guest. So if the person is not from your group, you can remove the person. Okay. Who is Nitin? I don't know. Didi, I have only one guest, Amitav, nobody else. Okay. So. All right. Okay. Just give me a minute. Sure. I've removed Nitin. I don't know who Nitin was. And he's still there. His name is still there. And I've removed him. Anyway. Yeah, okay. I pressed the wrong button. That's fine. I do a little bit of all those things. Okay, now let's start on interpersonal relationships. Over to Anuradha ji. Anuradha ji, the floor is all yours. Thank you. Patience with us. We have a whole lot of questions to ask also. Sure. Right. Okay. Over to you. Yeah. Good afternoon, everyone.
एंड थैंक्स टू माला दीदी, आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया। काफी दिनों से हम ट्राई कर रहे थे कि मैं दिल्ली आऊं और इस तरह का कोई सेशन हम डिलीवर कर पाए। सो थैंक्स टू लॉकडाउन कि ये अपॉर्चुनिटी हमें जूम के थ्रू मिली। और रितु जी ने मेरा इंट्रो दिया है, सो देयर इज नो नीड टू से इट अगेन। आई एम फ्रॉम बनारस और बिजनेस के साथ साथ मैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग आजकल कर रही हूँ। सो अभी जो नेक्स्ट 45 मिनट्स हम एक साथ रहेंगे इस फ्लोर पे, जूम पे, एंड आई विल टॉक अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं दो चीज आप लोगों से चाहूंगी। पहला तो ये कि थ्रू आउट द 45 मिनट्स ये जो कंप्लीट हमारा सेशन रहेगा, प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, नॉट विद द टेक्नोलॉजी, बट connected with me means please don't judge me entire 45 minutes. So judgment कैसे होता है कि अभी आप लोग रेगुलरली जूम पे काफी सेशंस अटेंड कर रहे होंगे, अलग अलग स्पीकर्स आते हैं। सो एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि वी स्टार्ट जजिंग, वी स्टार्ट कंपेयरिंग द पर्सन कि पहले वाला स्पीकर कैसा था या हमने क्या एक्सपेक्टेशंस रखी थी। तो इसको बीच में मत आने दीजिए। थ्रू आउट गेट कनेक्टेड विद मी 45 मिनट्स। जितना आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना जो मैं आपको बोलूंगी, जो मैं बताऊंगी वो आप तक पहुंचेगा, आप रिसीव कर पाओगे। द मोमेंट यू स्टार्ट जजिंग मी, वो डिस्कनेक्शन हो जाएगा। तो जो भी है वो हम एक 45 मिनट्स आपका मुझे चाहिए कंप्लीटली विद मी। एंड सेकेंड थिंग, जो भी ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में हम बात करेंगे, ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ विद माई एग्जाम्पल्स, बिकॉज आई विल गिव माई काउंसलीज एग्जाम्पल, माई ओन एग्जाम्पल, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो हर उस मोमेंट, हर उस पॉइंट से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो भी बातें होती हैं वो अभी ना अभी, कभी ना कभी आपकी लाइफ से कनेक्टेड होती ही हैं, कभी आपसे, कभी आपके किसी नियर और डियर वन से। सो ये दो पॉइंट थ्रू आउट 45 मिनट्स आपको मेरे साथ रहना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप? आजकल ये बहुत ज्यादा हम बहुत अलर्ट हो गए हैं, बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अपनी हेल्थ के बारे में, और हेल्थ, अपनी हेल्थ नहीं, अपने रिलेशनशिप की हेल्थ के बारे में। तो ऐसा क्या है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जिसमें हम अभी इतना ज्यादा लास्ट 10-15 ईयर्स से हम बहुत बातें करने लगे हैं, कभी पेरेंटिंग की बातें, कभी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बातें काफी ज्यादा होने लगी। सो लेट मी टेल यू, हमारा जो माइंड होता है, हमारी जो सोल होती है, इंटैक्ट होलिस्टिक पर्सन जो होता है, इट इज जस्ट लाइक अ किचन। कैसे? किचन में आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, whatever ingredients you have in your kitchen, आप जो भी कुछ बनाएंगे, it is the output of that ingredient. You cannot make anything out of your kitchen. आपके किचन में अगर 12 ingredients हैं, आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेके 12 से मल्टीपल कुसीन बना सकती हैं, बट आप उस 12 के अलावा कोई चीज यूटिलाइज नहीं कर सकती जो आपके किचन में आप उसी को यूटिलाइज करोगे। सो नाउ कनेक्ट दिस विद योरसेल्फ। अगर आपके खुद के अंदर हैप्पीनेस है, अगर आपके खुद के अंदर एक सेटिस्फैक्शन है, आपके खुद के अंदर कोई कुंठा नहीं है, कोई ग्लानी, कोई गिल्ट नहीं है, सो व्हेनेवर यू मीट समवन, व्हेनेवर यू गेट कनेक्टेड विद समवन, व्हाटएवर इज देयर विद इन यू, यू विल गिव दैट आउटपुट। अगर आपके अंदर हैप्पीनेस है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है, तो जो भी रेसिपी आप बनाओगे वो इन तीनों से ही बनेगा, कोई चौथा इंग्रेडिएंट उसमें नहीं आ पाएगा। So yeah. दीपा गोयल, रेणु भूषण, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बहुत शोर हो रहा है। Okay. Mute है, you are mute. Thank you. Sorry, Anuradha. No, that's okay. So why it is important to be happy from inner self, inner, अपने अंदर से खुश रहना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि आपके पास जो भी होगा आप वही सामने वाले को दोगे। Whether you are a working woman और आपके बच्चे हैं या ग्रैंडसन्स हैं या आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है, आप वही दे पाओगे जो आपके अंदर होगा। तो अपने अंदर नेगेटिविटी लाने की जगह अगर हम पॉजिटिविटी लाएंगे तो कोई भी कॉम्बिनेशन में हम काम करेंगे, जो आउटपुट निकलेगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। और ये 45 मिनट्स इंटरैक्टिव सेशन नहीं है, तो मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर भी मैं खुद ही दे दूंगी क्योंकि हम इंटरैक्ट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सो क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह के सेशंस का जो आउटपुट होता है, जो इस तरह के हम मोटिवेशनल सेशंस लेते हैं, कितना हमें याद रहते हैं अपनी लाइफ में।
आज आपने 45 मिनट सेशन अटेंड किया, उसके बाद आपने दूसरी बातें आप घर में गए और दूसरी बातों में आप लग गए, आप वो चीजें भूल जाते हो जो आप सेशंस में अटेंड करते हो। सो यहाँ पे पर्सनली मैंने अपनी एक्सपीरियंस से अपने सेशंस को जब मैं डिजाइन करती हूँ, तो दिस इज समथिंग मोर अबाउट द टूल्स विच यू कैन यूज इन योर डे टू डे लाइफ, लेस अबाउट द प्रीचिंग एंड मोर अबाउट द टूल्स। अब इसको भी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि सपोज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जब लॉकडाउन नहीं था तो आप क्या किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आपको बाहर अपनी फुटवेयर्स रिमूव करने पड़ते हैं, आप अंदर जाते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते हो, हाथ जोड़ते हो, कुछ आपको प्रसाद मिलता है, एक्चुअली आप कहाँ जाते हो? तो एवरीबॉडी विल से कि हम मंदिर जाते हैं, राइट? इतना लंबा जो डिस्क्रिप्शन हम देते हैं उसकी जगह हम एक वर्ड यूज करते हैं, हम टेम्पल जाते हैं, उससे सारा डिस्क्रिप्शन अपने आप क्लियर हो जाता है। In the same way in my sessions, I used to give some tools. आपको सेशन याद रहे नहीं रहे, अनुराधा मंत्री, अनुराधा जाजू याद रहे नहीं रहे, लेकिन ये टूल्स याद रहेंगे। सो जब भी आप अपनी लाइफ में अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कहीं भी वीक पड़ेंगे, यू कैन यूज दीज टूल्स एंड देन आप उससे बाहर आ जाएंगे। सो इन एंटायर 45 मिनट्स में आपको 3 बेसिक टूल्स दूंगी जिसको आप समय समय पर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इंट्रो की वाई टू गिव सच टूल्स, या हम इस तरह के सेशंस लेने की हमको जरूरत क्या है। अभी इनर व्हील ऑर्गेनाइज कर रहा है, जूम है और टाइम हमें बहुत मिल रहा है, तो लेट्स यूटिलाइज द टाइम, इसलिए या कोई और रीजन है कि हम इस तरह के सेशंस को अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं। तो अभी सारी विमेन पावर है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अभी इस समय। एक क्वेश्चन है मेरा कि आप में से कभी ना कभी किसी न किसी ने अपने बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाया होगा, चाहे 4th स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में, कभी भी पढ़ाया हो। जब बच्चा मैथमेटिक्स के किसी सम में उलझता है या वो वहां पे वीक पड़ता है, तो आप क्या करते हो? आप उसको सोल्यूशन देते हो कि ये इसका सोल्यूशन है, इसको ऐसे करना है। अब अगर वो बच्चा दोबारा आपके पास कुछ समय के बाद वो प्रॉब्लम लेके आता है, एक इग्नोरेंट पेरेंट उस समय फिर से बच्चे को सोल्यूशन दे देता है। बिलीव मी, आप जब इस तरह के सोल्यूशन किसी को देते हो तो एक्चुअली आप सामने वाले को हैंडीकैप करते हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप उसको तुरंत रेडीमेड दे दोगे, वो खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन फिर वो 2 स्टेप के बाद किसी न किसी प्रॉब्लम में फिर से फंस जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक इग्नोरेंट पेरेंट बच्चे को सोल्यूशन देता है, लेकिन एक अलर्ट पेरेंट उस प्रॉब्लम की बेस में जाता है कि इस बच्चे को मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में जो इशू आ रहा है उसके बेस में क्या है। क्या बच्चे की मेमोरी में प्रॉब्लम है? क्या बच्चा मेंटल कैलकुलेशन के चक्कर में भूल जाता है चीजें, या उसका कंसंट्रेशन नहीं है? तो वो उस बेस में जाता है। तो ये सेशंस जो होते हैं वो आपको सोल्यूशन अगर दे देंगे तो आप हो सकता है 45 मिनट्स के बाद बहुत खुश हो जाओ कि हाँ, मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल गए, बट आप एम्पावर नहीं हो सकते, आप वो पावरफुल लाइफ में एंटर नहीं कर सकते जो आपको हर मोमेंट, हर समय एक पावरफुल रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए बाध्य है। तो सेशंस में सोल्यूशन की जगह पे आई एम ट्राइंग एज अ काउंसलर, आई ट्राई टू एम्पावर यू सो दैट एवरी स्टेज आप उन टूल्स को यूज करें, अपने आप को एम्पावर करें और उस सोल्यूशन तक पहुंच जाए खुद, रादर देन कोई आपको रेडीमेड सोल्यूशन दे। तो ये एक आउटलाइन थी कि किस तरह से सेशन को डिजाइन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए या फिर लाइफ में अपने आप को बहुत पावरफुल और स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है लिसनिंग डेवलप करना। पहला जो इंपॉर्टेंट टूल होता है वो होता है लिसनिंग को ज्यादा डेवलप करना। व्हाट इज दिस लिसनिंग? जो आप अभी मुझे दे रहे हो, क्या वो लिसनिंग है? क्या वो हियरिंग है? ये अलग अलग टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं। लिसनिंग तब होती है जब कोई कहता है और हम सुनते हैं और उसको बिना जज किए हुए एक्सेप्ट करते हैं। सो लिसनिंग इज समथिंग, जब कोई कहता है हम उसको सुनते हैं और बिना जजमेंट दिए हुए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज लिसनिंग। आई विल एक्सप्लेन कि ये हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में किस तरह हमको पीछे खींचता है और किस तरह आगे करता है। मैं आपको एक मजेदार एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहूंगी। आप में से कोई
साउथेक्स की बहुत अच्छी सी एक शॉप से अपने लिए एक ड्रेस मटेरियल खरीद के लाया। ड्रेस मटेरियल जो है वो सब्यसाची का डिजाइन किया हुआ था। आपने उस ड्रेस मटेरियल को खरीदा, कॉस्टिंग अराउंड 20 to 25,000। उसके बाद आपने उसको अपने डिजाइनर को दिया, बहुत अच्छा आपने सेटअप वगैरह सब अच्छे से उसको करके दिया। उसके बाद जब आप उस ड्रेस की डिलीवरी के लिए गई तो आपको पता चला कि वो ड्रेस उस लेवल पे नहीं बना जैसा आपने एक्सपेक्ट किया। ओके, सो दिस इज द केस। आपने एक बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदी, उसको एक डिजाइनर को दिया, वो डिजाइनर ने उस ड्रेस को खराब कर दिया। नाउ यूर मूड ऑफ, आप उस ड्रेस को लेके घर आए। नाउ जब घर आप आए, यू आर इन अ बैड मूड, आपने वो बात शाम को अपने हस्बैंड या अपने बेटे या जो भी आपके आसपास है उनके साथ वो बात कही। ठीक है, प्लीज गिव अटेंशन ऑन माई वर्ड्स, दे आर वेरी सेलेक्टिव। आपने अपनी बात कही, आपने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक ड्रेस खरीदी और मेरे डिजाइनर ने वो ड्रेस बिगाड़ दी। Now, as I said that this is not interactive session, तो मैं हस्बैंड की बात भी मैं ही कहूंगी, वाइफ की बात भी मैं ही कहूंगी। ट्राई टू कोरिलेट इट, राइट? जब वाइफ ने ये बात अपने हस्बैंड के साथ शेयर करी तो देयर आर मल्टीपल वेज कि हस्बैंड रिएक्ट करे, राइट? पहला वे होता है जब हस्बैंड ने ये कहा हो, अलग अलग तरह के हस्बैंड होते हैं। किसी ने ये कहा कि मुझे पहले से पता था कि वो डिजाइनर ठीक नहीं है, मैंने तुम्हें कई बार उस डिजाइनर के लिए बोला था कि डिजाइनर इज नॉट गुड, but still you are going there. See the result. Okay. Are you satisfied with such answer? Are you satisfied with such answer? No. A very big no. Second type of husband, they say 35,000 का ही तो खराब हुआ है, why you are putting this much head into this? हो गया ना, जाने दो. Are you satisfied with this answer? I don't think so. बिकॉज अगर हस्बैंड ये आंसर देता है कि 35,000 का ही तो था, छोड़ो, क्यों इतना दिमाग लगा रही हो, हम में से कई इस बात पे रिएक्ट करेंगे कि मेरा पैसा लगा ना, आपका अगर लगा होता तो वो पेन आपको होता, मेरा लगा है तो इट्स वेरी इजी टू से 35,000 भूल जाओ, समथिंग लाइक दिस। समटाइम्स हस्बैंड मे से 35,000, आर यू जोकिंग, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? ये भी एक रिएक्शन हो सकता है। नाउ इस रिएक्शन पे भी मल्टीपल तरीके से हम रिएक्ट कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा, आज 35,000 का नुकसान मेरी वजह से हुआ तो यू आर शाउटिंग, यही नुकसान आप करके आते हो तो मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ, राइट? सो आर वी सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द आंसर गिवन बाय आवर हस्बैंड? अ वेरी बिग नो। आप मल्टीपल आंसर सोच सकते हो अपने अपने हस्बैंड को, अपने अपने बेटे को, भाई को उसमें फिट करके, आप या बेटी को, किसी को भी, माँ को, किसी को भी उसमें फिट करके आप वो आंसर सोचो और ये सोचो कि क्या ये आंसर आपको चाहिए था? नहीं, you will never get satisfied with any of the answer. Why? A simple reason behind this, आपको आंसर चाहिए ही नहीं था। आपने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम, अपने साथ जो बात हुई उसको सिर्फ शेयर करा था। You have just shared. You didn't ask the solution. A woman, एक lady, एक पुरुष, एक बच्चा, they are very clear either they want a solution or not. उन्होंने अपनी बात आपको कही या आपने अपनी बात किसी को कही, आपने सिर्फ ये डिस्कस किया या कहा कि मेरी ड्रेस खराब हो गई, आपने सजेशन नहीं मांगा। बट सामने वाला, they start suggesting. This is the problem in listening. ये listening नहीं होती। जहां पे आप, सामने वाले ने आपको अपनी बात शेयर करी, आपको एक listening देनी थी, बिना जजमेंट किए हुए उसकी बात को सुनना था। The person is capable enough to handle the situation. कई बार ऐसा होता है कि हम बाद में झुंझुला के कह देते हैं कि मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो फिर हस्बैंड ये कहते हैं कि फिर पूछा ही क्यों था? पूछा नहीं था, जस्ट शेयर किया था। Now you can correlate this incident with everybody in your family. कई बार बच्चे, ग्रैंडसन्स हमारे पास आते हैं, हमारे nephews, हमारे niece हमारे पास आते हैं, they talk something about their friends, they talk something about their parents, they talk something about their teachers, and what we do, we start giving them ज्ञान। अच्छा, तुमने टीचर के साथ ऐसे बात करी, यू आर नॉट सपोज टू डू लाइक दिस। अरे सुन तो लो कि वो बच्चा क्या कह रहा है, सुन तो लो। कई बार ये प्रॉब्लम हस्बैंड वाइफ के बीच में अक्सर होती है। हस्बैंड ने अपने ऑफिस की कोई प्रॉब्लम, बिजनेस की कोई प्रॉब्लम आपके साथ आके डिस्कस करी,
वो डिस्कस कर रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे डिच करा, या मेरी ये डील कैंसिल हो गई, या समथिंग लाइक दिस. व्हाट वी डू, हमारे अंदर का रेस्क्यू वाइफ जाग जाती है और हमें लगता है कि दिस इज मी जिसको अपने हस्बैंड को बचाना है, दिस इज मी जिसको मुझे अपने बेटे को या बेटी को या बहू को या एनी XYZ हमको बचाना है. वी डोंट गिव लिसनिंग, वी स्टार्ट गिविंग सॉल्यूशंस. सामने वाले को सॉल्यूशन नहीं चाहिए. अब लिसनिंग जब आप उसको देते हो विदाउट जजमेंट, वो पोरिंग करता है, वो उसको एक वॉश बेसिन चाहिए जहां पे वो पोर कर दे अपने आप को, कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट फ्री फील करे, एंड देन शी कैन थिंक सम न्यू पॉसिबिलिटीज. सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में स्पेशली ये लैक होता है, जहां पे हम, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि थ्रू आउट 45 मिनट्स ट्राई टू लिसन, बी कनेक्टेड. The moment you start giving your suggestions, your advices, a rescue mode, वो work नहीं करता. अब कई बार लोग इसमें ये कहते हैं, then what is the role of ours in family? हमारी place क्या है family में? Especially जो हमारे घर के elders होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमें बोलना ही नहीं है, कुछ बीच में जाना ही नहीं है, तो फिर हमारी value क्या है life में? Believe me, किसी को अपनी listening से empower करना बहुत difficult होता है. एज अ काउंसलर हमें यही करना होता है. जब हमारे पास आप प्रॉब्लम लेके आते हो, सोल्यूशन देने के लिए हम उछल रहे होते हैं कि बस आपकी प्रॉब्लम सुने और हम आपको एक सोल्यूशन दे दें. लेकिन अगर वो सोल्यूशन हम आपको देंगे, आप अगली बार फिर किसी पॉइंट पे जाके अटक जाओगे. उससे बेहतर उस लिसनिंग को दे के उसको खुद एक्सप्लोर करने के लिए पॉसिबिलिटीज हम दे देते हैं जब हम लिसनिंग देते हैं. तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की ये पहली चाबी होती है. अब इस एग्जाम्पल से आप कहीं भी कनेक्ट करो अपने आप, और आपको ये देखना है कि कहाँ पे मैंने लिसनिंग नहीं दी और अपने अंदर की रेस्क्यू पर्सन को मैंने बाहर ला दिया. और इसीलिए हस्बैंड कई बार ये कहते हैं कि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी. बच्चे हमारे पास बैठते नहीं, टीनेजर्स हमारे पास बैठते नहीं, और हम ये कहते हैं कि हमारा जनरेशन गैप है. देयर इज नथिंग लाइक जनरेशन गैप. जनरेशन गैप अगर होता तो दादी और पोते में पड़ती नहीं. Nothing like this. क्यों हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते? क्यों हमारी नई जनरेशन हमारे साथ बैठना नहीं चाहती? Because the moment they start sharing, आज इंस्टाग्राम पे पता है एक अननोन पर्सन ने मुझे लाइक भेज दिया, कमेंट भेज दिया, we start rescuing. मैंने पहले ही बोला है ये प्लेटफॉर्म गलत है, तुम सुनते नहीं हो, किसी दिन पछताओगे. हम हर वो नेगेटिव एस्पेक्ट उसके सामने रखते हैं जो एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एंड इन एनी रिलेशनशिप, इवन एज अ बॉस, इवन एज अ एम्प्लॉयर, हम इस चीज के हर नेगेटिव एस्पेक्ट को उसके सामने रखते हैं और वेट करते हैं कि वो कब फंसे और कब हम ये कह सकें कि देखा मैंने तो पहले ही कहा. तो इनफैक्ट हम उस नेगेटिविटी का वेट करते हैं. तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए पहला कीवर्ड, पहला जो टूल है, दैट इज लिसनिंग. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट captured in any such event or moment of your life जहां पे आपको लगे कि आप सामने वाले से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, तुरंत अपने दिमाग को अलर्ट करिए कि कहीं आप लिसनिंग की जगह जजमेंट तो नहीं दे रहे हो. हम सलमान खान की पिक्चर देखने जाते हैं, जैसे ही सलमान खान पर्दे पे आता है, हम तुरंत उसके लुक को स्कैन करके जज करते हैं और ये बोलते हैं कि ये दबंग में ज्यादा बेटर दिखा था. और the moment we start judging this, we get disconnected with Salman in this movie, और वो मूवी हमको पसंद भी नहीं आती. ये होता है, यही होता है. सो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसी भी लेवल पे हो सकते हैं. आपकी इवन मेड के साथ भी हो सकते हैं. मेरी मेड मेरी बात नहीं सुनती, मेरे बच्चे पे मेरी बात का कोई असर नहीं होता, बच्चे आजकल हमारी बात नहीं सुनते. जब भी आप ऐसा पावरलेस फील करें, तुरंत माइंड को अलर्ट करिए और इस टूल पे ध्यान दीजिए कि कहीं लिसनिंग छूट तो नहीं रही है, कहीं लिसनिंग की जगह हम हियरिंग तो नहीं दे रहे हैं, कहीं हम जजमेंट मोड पे तो नहीं चले जा रहे हैं. ट्राई टू बिकम अ वॉश बेसिन फॉर योर नियर एंड डियर वंस. दे वांट टू पोर आउट. उनको सिर्फ वॉमिट करना है. हाँ, अगर वो आपसे कहते हैं कि आई नीड अ सजेशन, आई नीड एडवाइस, देन डू इट. अदरवाइज एडवाइस देना बहुत इजी होता है और किसी को लिसनिंग देके एम्पावर करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप ज्यादा बड़ा काम कर रहे हो, rather than किसी को एक एडवाइस देके अपने आप को एस्टैब्लिश करना कि yes I am powerful, no you are not powerful. You get disconnected with a person, आपकी पकड़ ढीली हो जाएगी उस रिलेशनशिप से,
चाहे वो बहू के साथ हो, चाहे बेटी के साथ हो, चाहे जवाई के साथ हो, चाहे दोस्त के साथ हो. दोस्त भी आके अपनी बात आपको फोन पे कहते हैं, एंड यू स्टार्ट गिविंग सजेशंस. सो पहला पॉइंट याद रखिए, लिसनिंग को ज्यादा पावर दीजिए, लिसनिंग पे ज्यादा फोकस करिए. जो हमारा नेक्स्ट टूल है इसमें, आर यू अ जंपिंग जैक. मैंने पहले ही बोला कि मैं अपने सेशंस में नाम देती हूँ, मुझे नाम देने में बड़ा मजा आता है. नाम इसलिए देती हूँ क्योंकि आप सेशन भूल जाओगे, लेकिन आपको ये टूल्स हमेशा याद रहेंगे. सेकंड, आप अपने आप में ये ध्यान देना है हमको कि कहीं हम जंपिंग जैक तो नहीं है. व्हाट इज दिस जंपिंग जैक? Jumping jack is someone who jumps on conclusion. तुरंत कंक्लूजन पे हम हिट कर देते हैं. आज जो कोविड हो रहा है, कोविड-19 में जो लॉकडाउन हो रहा है, या जो लोग इस सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी डेथ हो रही है, या कभी एक नेचुरल डेथ भी किसी की होती है, जो लोग वहां पे आके दुख व्यक्त करते हैं, कभी ध्यान दीजिए, खुद को भी उस पोजीशन में रख के देखिए, क्या कभी दुख उस पर्सन के लिए किया है जो गया है? हमारी आंखों में आंसू उस बच्चे को देख के होते हैं, अरे अब इस बच्चे का क्या होगा, अरे अब इसकी वाइफ का क्या होगा, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जंपिंग ऑन कंक्लूजन. सो व्हेनेवर यू जंप ऑन कंक्लूजन, पेन स्टार्ट्स. जैसे न्यूटन के लॉ होते हैं, जैसे जिंदगी में कुछ चीजों के लॉज होते हैं, वैसे रिलेशनशिप का ये लॉ होता है. व्हेन यू leave the fact and jump on conclusion, you will get trapped into pain. Again, I am giving you one very nice example. आप में से किसी की बहू अगर वर्किंग है, या बेटी अगर वर्किंग है, वो अगर ऑफिस से घर आती है, या आप खुद वर्किंग है और ऑफिस से आप घर आते हो, थोड़ा सा लेट हो गए आने में, कम्युनिकेट नहीं कर पाए घर पे. The moment you enter the house or your daughter enters the house, the moment you ask, अरे आज देर हो गई, यूजुअल कंडीशन में हो सकता है सामने वाला बोल दे, हाँ आज बहुत ट्रैफिक था, ये था, वो था, चीजें ठीक है, हो जाता है सॉल्व. बट समटाइम्स इट हैपेंस, आपने सिंपल एक सेंटेंस पूछा, अरे आज आप बहुत लेट हो गए आने में. द अदर पर्सन जम्प्स इनटू कंक्लूजन. कई बार वो वोकल होता है, कई बार उसके मन में वो कंक्लूजन्स होते हैं. क्या मतलब है इसका कि मैं लेट हो गया आने में? डोंट यू नो द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली? डोंट यू नो कि मुझे ISBT पे 2 बस बदलनी पड़ती है? डोंट यू नो कि मैं क्या बाहर झक मारता हूँ? इस तरह के कंक्लूजन्स पे हम जंप करने लगते हैं. आप बिग बाजार से बहुत अच्छी एक शर्ट लेके आई अपने हस्बैंड के लिए. द मोमेंट यू से कि ये शर्ट मैं लेके आई हूँ, और हस्बैंड ने ये कह दिया कि अरे दूसरा कलर नहीं था क्या कोई? ही जस्ट सिंपली सेड, क्या दूसरा कोई कलर नहीं था? बट वी जंप द कंक्लूजन. आपको तो कुछ भी लाके दो पसंद नहीं आता. आपको क्या पता है कि आपके पास कौन सी शर्ट है, कौन सी नहीं है? मुझे पता है. आई मैनेज योर वार्डरोब. आपको पता है कि मैं बिग बाजार में कितनी धक्के खा के, कितनी गर्मी में रह के, वहां AC भी नहीं चलता है, मैं आपके लिए सामान लेके आई, एंड यू आर सिंपली सेइंग कोई और कलर था. उस बंदे ने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, क्या कोई दूसरा कलर था? वी जंप इनटू कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम वो कंक्लूजन्स अपने अकॉर्डिंग, अपनी सोच, अपने कंफर्ट, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं. एंड द मोमेंट वी शिफ्ट फ्रॉम फैक्ट टू कंक्लूजन, पेन स्टार्ट्स. तुरंत हमारे अंदर एक पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, और हम ना केवल सामने वाले से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बल्कि हम उस पेन में चले जाते हैं जो पेन का कोई बेस ही नहीं होता है, और वो रिलेशनशिप में हम कमजोर हो जाते हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको अभी रिसेंटली देती हूँ. अभी मैं देख रही हूँ कि हमारे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 33. अब सपोज इफ आई एम अ स्पीकर, मैंने अभी कल एक डिलीवर किया जिसपे पार्टिसिपेंट्स 100+ थे. द मोमेंट आई एंटर दिस क्लास एंड आई सी द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 33. नाउ दिस इज द फैक्ट दैट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर 33. इफ आई जंप ऑन दिस कंक्लूजन, अरे यार ओनली 33, कल जो दिया था उसमें तो 100 था, अरे माला दी ने पहले नहीं बताया 33 रहना था, नहीं तो मैं ना इसको ऐसे डिजाइन करती. द मोमेंट आई जंप ऑन कंक्लूजन, आई विल गेट डिस्कनेक्टेड विद दिस ऑडियंस ऑफ 33 ब्यूटीफुल सोल्स.
and I start thinking I will go in my pain कि यार मैं as a speaker मैं 33 लोगों को address करा, this and that. You fact is this, that the audience is 33, and we jump on conclusion, whatever conclusion, x y z, दिमाग कहाँ कहाँ नहीं जा सकता है, कहाँ कहाँ नहीं जा सकता है. But if I will stick on this fact that I am connected with 33 beautiful souls, and this 33 beautiful souls have given their 45 minutes to me, then I can deliver my session with 100%. मैं आपके साथ connected भी रहूंगी, मेरी बात आप तक जाएगी भी, जो मैं deliver करना चाहती हूँ वो deliver भी होगा, और मुझे कोई pain नहीं होगा. I will feel powerful. आपने किसी को अपने घर पे invite किया, 10 लोगों को invite किया, उस किटी पार्टी में 6 लोग आए, 4 turn up नहीं हुए. We start giving conclusion to this. अच्छा 2 फोन किए थे, बट जिन लोगों को तो 10 बार जब तक फोन नहीं करो तब तक वो लोग आते नहीं है. मेरे घर में शादी है जो मैं इतने फोन करूंगी. आज की सिचुएशन को देखते हुए उनको समझना चाहिए कि मैं सब सारे काम कर रही हूँ, फिर भी 6 ही आए, 4 ने फोन नहीं उठाया. The moment we jump on conclusion, we get disconnected with the person and we enter into pain. आप कहीं भी इस एग्जाम्पल को फिट कर लीजिए. आपने घर में लसागना बनाया, आपने अपनी मदर इन लॉ को खिलाया, मदर इन लॉ ने छूटते ही, वो पुराने जमाने की, उन्होंने कभी नहीं खाई ये डिश, उन्होंने छूटते ही बोला अरे बेटा इसमें करी पत्ता नहीं है, या इसमें तुमने छौंक नहीं लगाया. उसने बहुत सिंपल एक सेंटेंस बोला, बट वी कम इनटू कंक्लूजन, कुछ भी बनाओ कभी नया, कभी अप्रिसिएशन होता ही नहीं. कितना भी कर लो बट कभी मुझे अप्रिसिएशन मिलता ही नहीं. These are the conclusions. We start reading within the words. जो बोले भी नहीं गए हैं, हम उन वर्ड्स को, हिडन वर्ड्स को निकालने की कोशिश करते हैं. And we enter into pain. We get disconnected with the person. और हम पेन में एंटर कर जाते हैं, क्योंकि हम रियलिटी जो फैक्ट है, मे बी उन्होंने सरकास्टिकली बोला हो, मे बी so many maybe, but the fact is this, the person said इसमें करी पत्ता नहीं. That's it. Now we are behaving as a jumping jack. We are entering into conclusions and then putting ourselves in pain. Can you correlate this with yourself? Can you correlate with your surrounding? Can you correlate with your maid? Maid ने बोला छोटी सी बात, आज बर्तन बहुत ज्यादा हैं भाभी जी. Now we start into conclusion. जब कम होते हैं तब कभी नहीं कहती है. मैं इसको चाय भी बना के देती हूँ, देखो फिर भी ऐसा कहती है. What are you doing? She simply said, आज बर्तन बहुत ज्यादा है. We are going into conclusion. We get disconnected with the maid. We become powerless. We are into pain, and the small relationship with the employer and the employee get weak. Isn't it? जो आपके यहाँ पे काम कर रही है, आप उससे भी कनेक्टेड नहीं हो पाए, वहां भी डिस्कनेक्ट हो गए, बिकॉज वो सिंपली उसने कहा आज बर्तन ज्यादा है. दैट वाज अ सिंपल स्टेटमेंट, बट वी जंप्ड इनटू conclusions. So we behave as a jumping jack. So first we have to give the listening without judgment. Second tool, अगर आप listening भी दे रहे हो but फिर भी disconnect हो जा रहे हो, तो देखो कहीं आप conclusion पे तो jump नहीं कर जा रहे. आप बहुत अच्छी साड़ी पहन के आए, आपने तैयार होके आए, आपने अपने हस्बैंड को बोला कि how am I looking, और हस्बैंड ने ये कह दिया कि you are looking very good, but तुम्हें नहीं लगता कि तुम over dressed हो इस particular occasion के लिए. He simply said, क्योंकि उसने लिसनिंग नहीं दी, उसने आपको तुरंत सजेशन दे दिया, तो आप डिस्कनेक्ट हो गए. आप इस कंक्लूजन पे चले गए कि मैं कितना भी अच्छा तैयार हूं, आप तो कभी अप्रिशिएट नहीं कर, आपको तो कभी मैं समझ में नहीं आती. सो मेनी थिंग्स. हम वहां से वहां XYZ कहां कहां मे बी तक पहुंच जाते, और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कमजोर पड़ जाते. अब अगर आप लिसनिंग भी दे रहे हो, सामने वाले को समझने की कोशिश भी कर रहे हो, और जब सामने वाले ने कुछ बात ऐसी कह दी जो आपको चुभ गई, तो भी आपने अपने अलर्टनेस, अपने माइंड को तुरंत प्रेजेंट में रखा कि नहीं, मुझे कंफ्यूजन पे नहीं जाना है, मुझे तो केवल उसी फैक्ट को देखना है जो फैक्ट मुझे बोला गया है. फिर भी यू आर फीलिंग डिस्कनेक्टेड विद द पर्सन, यू आर नॉट फीलिंग वेरी एम्पावर्ड इन दैट रिलेशनशिप. देन यूटिलाइज द थर्ड टूल. इस सेशन का सबसे पावरफुल third tool. Everything in your life comes in a package. Believe me,
everything in your life comes in a package. What does it mean? आप मार्केट में गए, आपको कुछ भी एक इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है, आपको एसी खरीदना है, आपने बोला कि मेरे कमरे का साइज इतना है तो मुझे इतने टन का एसी चाहिए, आपने शॉप पे बात करी, आपने 10 जगह पे बात करी, आपको ऐसा एसी चाहिए, वैसा एसी चाहिए, सब आपको मिल गया, टन्स भी मिल गए, वोल्टेज भी उसमें कम है, सब कुछ अच्छा है। बस उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसका जो कंट्रोल है वो मोबाइल पे नहीं आता, उसका कंट्रोल अभी भी आपके इसमें ही आता है, रिमोट में आता है। You have to accept. And this is something you are going to buy, but whatever is already you are having, जो आपके पास already है, वो भी पैकेज में ही आपको मिलेगा। हमारी लाइफ सबवे नहीं होती जहां पे हम गए, हमने अपने ब्रेड भी अपने हिसाब से चूज करी, ऑलिव डलवाना है कि नहीं डलवाना है हमने चूज करा, वेजीज कौन सी डलवानी है, सॉसेस कौन सी डलवानी है। नो, लाइफ इज नॉट अ सबवे। Whoever comes in your life, whoever, it comes in a package. यहाँ तक कि आपकी मेड भी अगर बहुत अच्छी क्लीनिंग करती है, हाउस की सब कुछ बहुत अच्छा करती है, शायद उसमें एक बुराई होगी कि वो सब बहुत अच्छा करती है, लेट आती है, या वो लेट भी नहीं आती है, वो टाइम पे ही आती है, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जब वो छुट्टी मारती है तो वो कम्युनिकेट नहीं करती, बिना कम्युनिकेट किए वो छुट्टी मार देती है। सो दिस जो उसका ये एक कैरेक्टर है जो नेगेटिव जा रहा है, आप उस पर ज्यादा फोकस करते हो, और जो उसके जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं हम उनको छोड़ देते हैं। वो नेगेटिव चीजें हमको फील कराती हैं कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द पर्सन एंड वी गेट डिस्कनेक्टेड। द मोमेंट वी रियलाइज दैट एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज, अगर हमको हस्बैंड बहुत अच्छा मिला है, या अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा दामाद मिला है, या बहू बहुत अच्छी मिली है, तो हो सकता है कि उसमें एक बहुत बुरी आदत हो कि वो कम बोलती हो, वो इतना कम्युनिकेट नहीं करती हो। So, हमने लिसनिंग भी दे दी, हमने अपनी डॉटर इन लॉ के साथ जो बहुत कम बोलती है उसकी बातों को लिसन भी करा, उसको लिसनिंग भी दे दी, उसने कभी कुछ कहा तो हमने जंप भी हम नहीं किया, हमने कंक्लूजन पे हम उसी पे रहे जो उसने बोला है, फिर भी वी आर नॉट फीलिंग पावरफुल। Then you have to use the third tool, that you have to accept the person as the person is and as the person is not. हम यूजुअली पहला एक्सेप्टेंस तो कर लेते हैं, हम पर्सन को एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसा वो है, बट हम पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते जैसा वो नहीं है, और जो नहीं है उस पार्ट पे ज्यादा फोकस करके हम उसके साथ में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कैन यू कोरिलेट दिस विद योरसेल्फ, विद योर सराउंडिंग? कहाँ पे हम किसी एक पर्सन के साथ उसकी 10 अच्छी चीजों के बावजूद किसी एक वजह से हम उससे डिस्कनेक्ट हो गए। एम्प्लॉय के साथ डिस्कनेक्ट हो गया, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, सब कुछ बहुत है, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी क्वालिटी है कि वो ब्रेक बहुत लेता है, वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देता है, मे बी वो आपके ऑफिस का जो कल्चर है उसको खराब करता है। यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन एज द पर्सन इज, ट्राई टू लिसन द पर्सन, व्हाट इज द रीजन व्हाई ही इज टेकिंग सो मेनी ब्रेक्स। लिसन करिए, और जो आंसर वो दे रहा है उसके कंक्लूजन पे मत जाइए। वो ब्रेक्स ले रहा है, ऑफिस में कई बार मैं भी 35 लोगों की टीम संभालती हूँ, कुछ उसमें जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो ब्रेक पे बहुत जाते हैं। अगर मैं सिर्फ उनके ब्रेक के पॉइंट को समझूं कि ये बहुत ब्रेक ले रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, कंक्लूजन पे मैंने अब जंप किया कि इसका मतलब ये कि ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कि ये डिच कर रहा है, इसका मतलब ये कि ही इज नॉट लॉयल टू द कंपनी, द ओनली फैक्ट इज दिस, ही इज टेकिंग सो मेनी ब्रेक्स। I need to give the person as listening. What is the problem? हो सकता है कि एक एम्प्लॉय के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी काफी समय पहले। मेरे ऑफिस में जो कैमरेज लगे हुए हैं उससे जब रिपोर्टिंग आती थी तो पता चलता था कि वो बंदा हर आधे घंटे में उठता है, ऑफिस का एक चक्कर मारता है, सिस्टम पे आके बैठता है। उसके सबऑर्डिनेट्स ने कंप्लेन करनी शुरू करी कि मैम वो काम पे ध्यान नहीं देता है, आपको क्या लगता है कि इस तरह से होना चाहिए। बिलीव मी, जब मैंने उसके साथ बैठ के बातें करी, जब उसकी बातों को सुना तो समझ में आया, पता चला कि उसको फाइल्स की प्रॉब्लम है, ही कैन नॉट सिट मोर देन 20-30 मिनट्स, and we jump on the conclusion that person is not good enough for my company. We got disconnected, और तब हमें उसकी सब वो बुराई नजर आने लगती है जो एक्चुअली। So are you people with me? Are you feeling connected with me? ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स हम देते हैं, जितने भी आसपास की चीजें, क्या आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं? That's wonderful. Now, एक बड़ा क्वेश्चन जो सबके दिमाग में इस तरह के सेशन के बाद आता है कि why always me?
मैं ही क्यों हर बार लिसनिंग दूं, मैं ही क्यों हर बार जंप नहीं करूं कंक्लूजन पे, मैं ही क्यों हर बार अपने आप को झुकाऊं, मैं ही क्यों हर बार ये सोचूं कि एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज। क्यों दूसरा पर्सन नहीं सोचता कि आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो इन अ पैकेज, कोई मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करता एज अ पैकेज। मेरे अंदर भी 50 अच्छाइयां हैं, कोई एक बुराई है, उसको लोग पकड़ के क्यों बैठते हैं? Why always me? Why always me? This question will come in your mind. Now, simple answer for this is, it is you, because you wanted to be powerful in your life. आपको पावरफुल होना है, सामने वाले को नहीं। तो जब आपको पावरफुल होना है तो एक्शन भी आप ही को लेना पड़ेगा। सो जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में हिट करता है कि मैं ही क्यों, मैं सास हूं, मैं ही क्यों जाके बहू की बात हमेशा समझूं, कभी वो भी तो मेरी बात समझे। दिस एक्सपेक्टेशन will not solve any problem because you want to tackle the other person's mind. आप चेस दोनों तरफ से नहीं खेल सकते, आपको चेस केवल अपनी तरफ से खेलना है। So, जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आए कि मैं ही क्यों हर बार, मैं ही क्यों हर बार, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों हमेशा झुकूं, मैं ही क्यों हमेशा आगे बढ़ूं, मैंने क्या ठेका लिया है कि मैं इस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाऊं। नो, बट यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। तो उसको ध्यान रखिए कि जूम की इस मीटिंग को अटेंड करने वाले आप हैं। यू वांट अ चेंज इन योर लाइफ, दैट इज व्हाई यू आर हियर, दैट इज व्हाई यू आर स्पेंडिंग 45 वैल्यूएबल मिनट्स ऑफ योर लाइफ। तो जो भी चेंजेस होंगे वो आपकी लाइफ में होंगे। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। सो अगर आप कल को ये कहते हैं कि मैंने इसलिए ये सेशन अटेंड किया क्योंकि मैं अपनी फैमिली को खुश कर सकूं, नो, आपने ये सेशन इसलिए अटेंड किया ताकि आप खुश रह सकें। क्योंकि रिमेंबर, यू आर जस्ट लाइक अ किचन, आपके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वही आउटपुट में कन्वर्ट होंगे। अगर आप अपने फील करोगे और सामने वाले तक पहुंचा पाओगे, और अगर आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपना टर्न पूरा करे, तो बिलीव मी, आप इसी कोशिश में रहोगे, आप अपनी तरफ वाली कोशिश नहीं करोगे। So whenever you think why me, why me, why me, you are, because you have to keep a control on your life. यहाँ पे हर कैमरे में लगने वाली जो फोटो है जो मेरे सामने आ रही है, वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ की हैप्पीनेस और अपनी लाइफ के कंट्रोल के लिए। सो ये एक्शन तो आप ही को लेना है। अब एक और मेजर क्वेश्चन आता है, कितना। लोग कहते हैं कितना हम कंट्रीब्यूट करें अपनी लाइफ में। बहुत सारे गाने बने इस पे, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चलें, समथिंग लाइक दिस। लोग कहते हैं 50% तुम दो 50% हम दे तो मिलके 100% होगा। नो, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 50% आप दोगे, 50% सामने वाला देगा, तब मिलके वो 100% होगा, और फिर वो 2 लोगों में डिवाइड होगा तो आपके हिस्से केवल 50% ही आएगा। तो यू हैव टू गिव योर 100% in any relationship. The other person will give 100% to that relationship. Then it will become 200%. Then it will get divided into 2 and you will get your 100%. अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने 100% दे दिया, सामने वाला 20 दे रहा है। कोई बात नहीं सर, आपने 100 दिया, सामने वाले ने 20 दिया, 120 हो गया। अब आपके हिस्से तो 60 आएगा ही आएगा। कम से कम जो 50 सोच रहे थे उससे 10% ज्यादा ही आएगा। So I am again summarizing this session here, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर राउंड भी लेना है। I am summarizing this session here. First of all, if you want to be a powerful person in your own life, आपको एक्शन लेना है। और वो कौन से एक्शंस हैं? क्योंकि सबको पता है जिंदगी कैसे जीनी है। व्हाट्सएप ज्ञान भरा पड़ा है, बिल्कुल भरा पड़ा है व्हाट्सएप ज्ञान, और सब चीज सब लोग जानते हैं। द प्रॉब्लम इज दिस कि जब आप एक्चुअल लाइफ में एंटर करते हैं, जब एक्चुअल सिचुएशंस में एंटर करते हैं, तब कैसे डील किया जाए। तो उसको डील करने के लिए मैंने आपको 3 टिप्स दिए। पहला, लिसनिंग पावरफुल करिए, स्टार्ट करिए लिसनिंग। सेकंड, लिसनिंग भी दे रहे हैं तो भी विद इन द वर्ड्स मत घुसिए, जो बोला गया सिर्फ उस लाइन पे ध्यान दीजिए। जंपिंग जैक मत बनिए, और जंपिंग जैक भी नहीं बन रहे हैं, लिसनिंग भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, देन गो टू द थर्ड कैटेगरी कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, एक्सेप्ट द पर्सन एज द पर्सन इज and as the person is not. दोनों कैटेगरीज को एक्सेप्ट करिए। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये 3 टूल्स हैं, जब आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे 20% 30% आपकी लाइफ की क्वालिटी में फर्क पड़ेगा।
और जब वो 20-30% आपकी क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, देन यू विल मूव टुवर्ड्स योर ओन एम्पावरमेंट. आप खुद इस तरह के टूल्स बनाओगे जो आपको एम्पावर करें. सो रितु जी, आई एम रेस्टिंग हियर. आप जिसको भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, दे कैन रेज द हैंड एंड देन यू कैन अनम्यूट द पर्सन. या I want to say that, is there anything more you would like to tell us? We don't mind listening to you for another 10-12 minutes. Maybe you Yeah, can sure. supplement it with a few more live examples. Because in my case, your first thing that you just listen, don't react, that applies to me very much with me and my son. I, in fact, started crying because when you were talking, I realized that that is what I do. The moment he says something and I jump up and say, I told you and you did this and you didn't listen to me, I continue to do that and we do disconnect, and then both of us, sort of walk off in a huff. So I absolutely understand and very, very much appreciate your first point. That has absolutely hit home, So if you'd like to give us with more examples at the moment, I'm sure everybody would like some Sure. more examples. And then if everybody is then we'll open the floor to questions. You don't have a time limit. Sure. Sure. I don't mind. Yeah, I love to talk. And everyone is listening very intently. So give us a few more examples, so of day-to-day life. Okay. इस लिसनिंग पे मैं आपको एक बहुत ही मतलब रियलिस्टिक एग्जांपल, क्योंकि मेरे सारे एग्जांपल्स या तो मेरी खुद की लाइफ के होते हैं या फिर मेरे काउंसलीज के होते हैं. एक एग्जांपल देती हूँ, शायद जो यंग लेडीज हैं या जो मतलब जो भी अपने ग्रैंडसन्स या किसी के साथ भी डील करती हैं, दे कैन कोरिलेटेड. जब भी आपके घर में आपका बच्चा या आपका ग्रैंडसन स्कूल से वापस आता है, यहाँ पे लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब वो स्कूल से वापस आता है और वो वापस आते ही बैग एक तरफ फेंकता है, जूते एक तरफ फेंकता है, आपको हक करने की कोशिश करता है, तो पहला स्टेटमेंट जो एक पेरेंट देता है या एक ग्रैंड मदर जो घर में उस समय रहती है वो जो देती है, पहला स्टेटमेंट वो ये रहता है, शूज जगह पे रखो, बैग जगह पे रखो. रोज एक ही चीज समझाती हूँ, शूज जगह पे रखो, बैग जगह पे रखो. राइट? होता है, सभी के साथ होता है. आप अपने घर को बड़ा क्लीन रखते हैं शाम के 4 बजे तक, और जब वो आता है और एकदम उधम मचाता है घर में, तो आप बौखला जाते हैं और आप कहते हैं कि 10 बार बोला है पहले जाके मुंह धो, पहले जाके हाथ धो, तुम ये बात नहीं समझते. नाउ थिंक इन अदर वे. एक बच्चा जो आपसे दूर पिछले 8 घंटे से है, जिसकी लाइफ में 8 घंटों में पता नहीं क्या क्या चीजें उस बच्चे ने एक्सपीरियंस करी हैं, और सुबह 10 बजे अगर उसकी क्लास में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, उसने नेक्स्ट 6 घंटे वो फीलिंग अपने अंदर रखी, और द मोमेंट ही स्टेप्ड इन द हाउस एंड ही वांटेड टू शेयर समथिंग अमेजिंग, आपके लिए नहीं होगा, उसके लिए तो है, उसने 6 घंटे वो फीलिंग अपने अंदर रखी है. द मोमेंट ही स्टार्टेड शेयरिंग दैट, हमारे तुरंत हम वहां पे उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और हम लिसनिंग तो छोड़ दीजिए, हम तो हियरिंग भी नहीं देते. हम तो हियरिंग भी नहीं देते. और हमारे अंदर की जो डिसिप्लिन्ड मदर है, जिसके लिए किटी में कहते हैं यार तू अपना घर कितना अच्छा रखती है, कितना मतलब एकदम ऐसा लगता है होटल की तरह जगमगाता है, एक्चुअली वो होटल ही है, जहाँ पे हस्बैंड सोफे के ऊपर पैर रख के बैठ नहीं सकता, जहाँ पे बच्चा 2 मिनट के लिए अपने आप को इनडिसिप्लिन नहीं कर सकता, वहां पे लिसनिंग तो छोड़िए, हम तो हियरिंग भी नहीं देते बच्चे को. हम सुनना ही नहीं चाहते कि वो 6-7 घंटा उस बच्चे ने अपने अंदर जो फीलिंग रोक के रखी थी, जो तुरंत आपको हक करके आपसे कहना चाहता था, उसको हमने वहीं क्रश कर दिया. वेरी राइटली सर. और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमसे शेयर नहीं करता, और हम ये कहते हैं कि वो तो जनरेशन गैप है, बच्चा हमसे समझता है. ऐसा होता है? यस यस, वेरी राइटली सर, होता है. दिस हैड बीन, क्योंकि हमारे अंदर का जो डिसिप्लिन है, जैसे मैंने बोला रेस्क्यू, सजेशंस, हमारे अंदर की जो हमारी बेटर क्वालिटीज हैं, जो हमको स्पेशल बनाती हैं, वो हम कॉमन जगहों पे भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. अगर मैं एक बहुत ही अच्छी बिजनेस वुमेन हूँ, मैं बहुत हिसाब किताब रखती हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा रखती हूँ, मैं अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलाती हूँ, आई एम अ वेरी एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, बट घर में क्या वो एंटरप्रेन्योर की डिसिप्लिन वाली छवि घर में चाहिए? क्या मेरे बच्चों को वैसी डिसिप्लिन मदर चाहिए?
आई डोंट थिंक सो। एक पर्सन है, आप में बहुत अच्छी हाइजीनिक, आप बहुत अच्छा घर को संभाल के रखते हो, सब बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जिस घर में आपको बच्चों का शोर चाहिए, वहां पे आप कहते हो कि आवाज नहीं करना, बिल्कुल शांति से बैठना। तो पेरेंटिंग सेशन नहीं है ये, लेकिन पेरेंटिंग केवल पेरेंट्स का नहीं होता है काम। पेरेंटिंग हर उसका काम होता है जो एक बच्चे से सराउंडेड होता है। और फिर हम ये बात कहते हैं कि हम डिस्कनेक्टेड हो गए। और इसी चीज को मैं कंटिन्यू करते हुए आपको एक टूल देती हूँ, 3+1 ऑफर। 3 टूल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए, एक और टूल देती हूँ जिसको आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखोगे, दैट इज ABC। मालादी ने ये टूल पहले भी सुना होगा, ABC। ABC इज अ टूल, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है और आप हर के साथ अप्लाई कर सकते हो। एप्रिशिएट बिफोर क्रिटिसाइजिंग, एक्सेप्ट करिए बिफोर कंप्लेनिंग। अगर आपके बच्चे ने घर में आके एक प्लेट तोड़ भी दी है, बहुत बोन चाइना की, बहुत ही इटालियन, बहुत अच्छा खूबसूरत सा कोई सेट था, वो बच्चे ने तोड़ भी दिया है, उसकी गलती है, उसने अपने नॉटी बिहेवियर की वजह से तोड़ दिया, बट एक्सेप्ट इट दैट दिस इज समथिंग हैपेंड। हम क्या करते हैं, हम पहले ये बोलते हैं कि तुमने तोड़ दिया, तुम्हारे हाथ में कुछ संभाल के तुम रखते नहीं। हम ये बात पूछते ही नहीं कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी, कभी नहीं पूछते। हम पहले ये पूछते हैं कि तुमने ये तोड़ दिया। हम ये बात कभी नहीं पूछते कि तुमने ये तोड़ दिया, कोई बात नहीं, तुम साइड हटो, यहाँ पे कांच बिखरा हुआ होगा, तुमको चोट लग जाएगी। When we are not giving them the humanity examples, we are not giving them this type of warmth, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज पहले कर रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस लेके ही नहीं आ रहे हैं, हम सामने वाले को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जब आप बहुत अच्छे से तैयार होके आए और आप अपने रूम से बाहर निकले, रूम से बाहर निकलते आपके हस्बैंड ने टोक दिया कि ये कि आज मैंने ब्लैक साड़ी पहनी और मैं सेशन के लिए रेडी हुई, तो मेरे हस्बैंड ने अगर मुझे देखते ही ये बोला कि अरे तुम ब्लैक पहन के जा रही हो, उनको अगर मुझे करेक्ट भी करना है, फर्स्ट एक्सेप्ट, फर्स्ट अप्रिशिएट, वाओ अनु यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बट डू यू थिंक कि अगर तुम ब्लैक की जगह ब्लू पहनो तो इफेक्ट ज्यादा बेटर है? बिलीव मी, ये ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि सामने वाले ने पहले मुझे अप्रिशिएट किया कि आई एम लुकिंग गुड इन ब्लैक, बट ब्लैक इज नॉट गुड फॉर दिस ओकेजन। हम क्या करते हैं, कोई हमारे साथ कोई ड्राइविंग कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम ड्राइविंग खराब है नहीं कहते, हम ड्राइवर खराब है कहते हैं। यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर, तुम बहुत रैश चलाते हो, यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर। वी नेवर से दैट तुम्हारी ड्राइविंग थोड़ी सी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिजनेस फेल होता है तो हम क्या कहते हैं, हम पर्सन को ही फेल्योर बता देते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं संभाल। हम बिजनेस फेल हुआ है, एक स्ट्रैटेजी फेल हुई है, एक रेसिपी बिगड़ी है, वो बिगड़ा है ना, हम थोड़ी खराब हो गए। पर हम तो पूरी आइडेंटिटी को ही क्वेश्चन मार्क में ले आते हैं। अगर किसी की रेसिपी बिगड़ गई, तुमसे नहीं होगा, कि इसमें पेशेंस चाहिए होता है, तुम में वो पेशेंस नहीं है। मतलब इतने दिन जो उसने किया उसमें पेशेंस कहीं काम नहीं था, एक रेसिपी बिगड़ गई तो वो पेशेंस में क्वेश्चन मार्क लग गया। ना हमने लिसनिंग दी, ना हमने कंक्लूजन पे हम तुरंत जंप कर गए कि इसमें तो पेशेंस चाहिए होता है, तुम्हारे पास वो पेशेंस नहीं है। और हम तुरंत ही कह देते मुझे पहले से पता था, तुम और दूसरे काम देख लो, ये वाला काम नहीं होता है। Isn't it? We do this. और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करने की जगह उस कंप्लीट पर्सनालिटी को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास देखिए, अपने आसपास अपने हर रिलेशनशिप पे ऑब्जर्व करिए ये चीज, क्यों सामने वाला आपके साथ डिस्कनेक्ट हो गया। कई जगहों पे मैंने देखा है कि जो डॉटर इन लॉज होती हैं वो शुरू में चीजों को पूछ के करती हैं अपनी मदर इन लॉ से कि क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं यहाँ चली जाऊं, बाद में वो धीरे धीरे रोक देती हैं, नहीं करती हैं। क्यों? जैसे ही डॉटर इन लॉ ने पूछा, ये मैं एक जनरल बात कह रही हूँ, हो सकता है आपके ऊपर अप्लाई ना हो सकता है किसी के साथ अप्लाई हो, जैसे ही वो ये कहती हैं कि मम्मी आज मुझे फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है, पहला आंसर ये आता है अभी परसों तो गई थी, तुमको रोज जाना रहता है, अभी घर पे इतना। You will accept that she has to go, but first you criticize and then you will accept. First you accept, अच्छा तुम्हें जाना है, you can go, but बेटा next time जब तुम प्लान करो तो एक बार मुझसे पूछ लेना, हो सकता है हमारे घर में भी कुछ प्लान हो उस बार। First accept, then criticize. First accept,
देन करेक्ट। तो ABC, A पहले आता है, C बाद में आता है। हम पहले C ला देते हैं और A बाद में लाते हैं, और फिर सामने वाला हमको लिसनिंग नहीं देता, क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना कहा कि अच्छा परसों ही तो गई थी, उसने इसका ये कंक्लूजन निकाल लिया कि आपको तो मेरा जाना पसंद नहीं है, लोग तो कहाँ कहाँ घूमते हैं, मैं तो सिर्फ एक मूवी, क्योंकि उसने अब लिसनिंग नहीं दी, वो आप कंक्लूजन पे जंप कर गई जो आपके हाथ में नहीं। तो सामने वाला, इसीलिए मैंने बोला था मालादी से हो सके तो एटलीस्ट कपल्स को इनवाइट करिए, क्योंकि दोनों ज्वाइन करते हैं तो दोनों इस चीज को समझ पाते हैं कि किस तरह से पर्सनल रिलेशनशिप निभाना एक आदमी की नहीं, पूरी जिम्मेदारी सबकी होती है। पेरेंटिंग के सेशंस में भी मैं हमेशा कहती हूँ केवल पेरेंट्स को मत बुलाइए, ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुलाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छा माहौल दे दोगे लेकिन ग्रैंड पेरेंट उसमें अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो पेरेंटिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो इन एग्जाम्पल्स को अपने आप से कोरिलेट करिए। फिर से समराइज करूंगी, लिसनिंग दीजिए, हियरिंग नहीं, जस्टिफिकेशंस नहीं, जजमेंट्स नहीं, सिंपल हियरिंग। मेक योरसेल्फ एज अ वॉश बेसिन। सामने वाला आया, वॉमिट करके गया, खत्म। You have played a vital role in her or his life that you allowed the person to pour out. Second, आपने दिया, listening भी दे दी, उसके बाद आप between the words मत कूदिए, don't behave like a jumping jack. जो बोला गया सिर्फ उस पे रहिए, पेन कम होगा, you will feel more powerful. और उस पे भी बात नहीं बने, then जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट हमें करना है, क्योंकि everything will come in a package. लड़की को हस्बैंड अच्छा मिला है तो सास थोड़ी 19-20 होगी, सास और हस्बैंड बहुत अच्छा मिला है तो ननद थोड़ी 19-20 होगी। एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज, पूरा एक कंप्लीट पैकेज मिलता है। वी आर नॉट सबवे। और ये तीनों टूल्स जब आपको लगे कि सब कुछ कर लिया मैंने, तब एक बार सोचिए कि कहीं ABC में आप C पहले तो नहीं कर दे रहे, आप क्रिटिसाइज पहले तो नहीं कर दे रहे सामने वाले को अप्रिशिएट करने से पहले। अब इस पे कई बार लोग ये पूछते हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई कुछ गलत करे तो हम टोके नहीं। अगर बच्चे ने कोई शरारत करी है या घर में किसी ने कोई गलत स्टेप ले लिया है या कोई गलत डिसीजन लिया है, तो फिर भी क्या हमें अप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं, एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट, कभी कुछ सालों पहले तक हमारी सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज एक्सेप्ट नहीं होती थी, और लोग कहते थे कि लव मैरिजेस में डिवोर्स रेट ज्यादा है। लव मैरिज में डिवोर्स रेट ज्यादा नहीं था, पेरेंट्स ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। जिस अरेंज मैरिज में पेरेंट जी जान लगा देते हैं कि नहीं तुमको टिक के रहना है, वहां लव मैरिज में वो पीछे हट जाते थे, तुम्हारी चॉइस है, तुम जानो। तो वो अप्रिशिएट या एक्सेप्ट नहीं करते थे, पहले क्रिटिसिज्म पे आ जाते थे, करेक्टनेस पे आ जाते थे, इसलिए लव मैरिज ज्यादा नहीं चलती थी। अब सिनेरियो चेंज हो गया है, अब सब चलता है। तो अपने आसपास जो लोग आपसे डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, और अपना रोल प्ले करिए, अपना 100% दीजिए। एक क्वेश्चन करती हूँ मैं ऋतु जी, अगर एक कुआं, उस कुएं की चौड़ाई जो है वो 100 मीटर है और आप कुएं की एज पे खड़े हो, एक कुएं की चौड़ाई जो है वो 100 मीटर है, अगर आप कुएं की एज पे खड़े हो, अगर आप कुएं को पार करना चाहते हो तो कितने मीटर की छलांग लगानी पड़ेगी? किसी ने 100 मीटर बोला, राइट? somebody said 100 मीटर. Any other answer? सौ मीटर का कुआं है, आप एज पे खड़े हो, कुएं को क्रॉस करना है तो कितने मीटर की छलांग लगानी है? पैर पे चली जाएगी। 1 सेंटीमीटर की छलांग आप तैर नहीं सकते हैं। साइड से चले जाएंगे, आपको कुएं को ही क्रॉस करना है। More than 100%. Exactly. 100%. 100 को अगर आप 100 को टारगेट बना के चलोगे, We'll go from the side. आप उसकी एज पे ही पहुंच जाओगे। We'll go from the side and across the. वो क्या है? परफेक्ट। तो अगर आपको उस कुएं को बॉर्डर से ही क्रॉस करना है तो आपको 100 मीटर से ज्यादा की छलांग लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने 100 मीटर यूज किया तो देयर आर चांसेस कि आप अंदर भी जा सकते हो। बोलने का मतलब ये है कि आपके एफर्ट्स जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा होने चाहिए। So ji, can we start question answers? Yes, please. I've unmuted all. I think that was a very, very beautiful question. And I'm sure all of us must have connected on some of the examples, some of the points. For me, the first one was with my don't listen, I want. And
I feel that for everything that he says, I must give a piece of advice which he's not ready to hear. So thank you very much. That's an eye opener. Now I open the floor. I'm going to unmute all, so that Please everybody. don't do that. Please don't. No. Ritu ji, please don't unmute everyone. Please mute everyone. And those who want to Ask question, they can raise the hand. 1 minute. I'm requesting, please don't unmute everyone. जिसको भी doubt है, Only can those who raise the want hand. to ask a question, please raise a finger and then do so. Yeah, I'll just Okay. unmute you, Pinky. Okay. Yeah, Pinky. Yeah, can I ask? Yeah, Yeah, Anuradha ji, when you say that if somebody says something to you, informs something to you, you just listen. But is it possible that sometimes that person might be wanting a solution, might be wanting an opinion, but if we restrict ourselves, he or she might think that we are not interested, we are disinterested. So how do you draw the line? Okay. अगर आपको ऐसा, पहली बात तो लिसनिंग में कभी भी कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है. When you give a listening, actually an effective listening, आधी प्रॉब्लम सामने वाले की वहीं सॉल्व हो जाती है, परफेक्टली सॉल्व होती है. बट स्टिल इफ यू फील दैट मुझे ये सजेशन देना चाहिए, कहीं सामने वाले को ये ना लगे कि मुझे आता नहीं है या मैं कुछ करना नहीं चाहती, यू कैन डायरेक्टली आस्क द पर्सन, डू यू वांट अ सजेशन, डू यू वांट मी टू टेल समथिंग. क्लियर, बिल्कुल क्लियर. सामने वाला खुद ही बोल देगा, अच्छा ठीक है. अगर उसने बोला कि हाँ आई नीड अ सोल्यूशन एंड देन यू आर गिविंग, देन सामने वाला लिसनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये उसकी खुद की चॉइस है. बट विदाउट his or her concern, if you start saying something, the other person will get disconnected कि मैं यहाँ अपनी प्रॉब्लम बोलने आया था, now she is telling something else. You can directly ask, I listened to you, I understand that this is something is going on with you, you want me to say something. आप ऐसा पूछ सकते हैं. Yeah. Take the concern. Right? Yeah, It's very that's- simple. yeah. Thank you. Yeah. Person who wants to ask, I'm not able to see who is A50s. They've raised their, okay. Yes, Moini ji. If somebody is telling you something about her life and it's all negative she's saying, do you still want to listen? What do you mean by negative? Give an example. Because she's cribbing about her life, she's cribbing about her daughter-in-laws, and she's cribbing about her every negative thing. Should we listen? Okay, let me tell you, 50 to 70% people always want to pour something negative of their life. उनको कोई पेन है तभी वो आपसे शेयर कर रहे हैं. Achievements लोग शेयर नहीं करते, right? They declare their achievements. If somebody wants to say something, actually किसी को अपनी मतलब बहू की कोई कंप्लेन है, वो बोल रही है. ऐसा अक्सर होता है जब एक बेटी अपने घर में अपनी मदर को फोन करके ये बोलती है कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरे ये किया, मेरी इसने ये किया. बिलीव मी, जस्ट गिव द लिसनिंग. वो खुद उस सिचुएशन से बाहर आ जाएगी, अनलेस एंड अनटिल वो स्ट्रांगली ये ना बोले कि आप सुन रहे हो ना, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए. कुछ लोग बोलते हैं ये बात कि आपने सुन लिया ना, आपने सब चीज समझ ली ना, नाउ यू टेल मी व्हाट शुड आई डू, देन गिव समथिंग. और उसमें भी आपको मैं बताऊं, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप लिसनिंग देंगे, दे डोंट वांट टू टेल यू व्हाट दे हैव टू गिव. वो ये आपसे जानना चाहते हैं कि देखो मैंने ये सिचुएशन बताई, अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ. एक्चुअली वो ये नहीं जानना चाहते कि क्या करना है, वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि देखो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, अब बताओ मैं इसमें कहाँ गलत हूँ. एंड इफ यू स्टार्ट सेइंग समथिंग नेगेटिव कि देखो तुम यहाँ गलत हो, बिलीव मी वो भाग जाएगा वहां से, क्योंकि एक्चुअली में उसको वो सुनना ही नहीं, उसको सिर्फ अपनी बात आपसे कहनी. और पहला जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसका वही आंसर इसका भी है. अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अदर पर्सन नीड्स योर हेल्प, स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क, मैंने बात सुनी तुम्हारी, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, फर्स्ट एक्सेप्ट अदर पर्सन ग्रिपिंग, एक्सेप्ट, फिर पूछिए. अनलेस एंड अनटिल आपका रिलेशनशिप इतना ज्यादा क्लोज का ना हो जहां पे आपके कुछ बोल देने से भी उसको फर्क ना पड़े, तब तक आप पहले पूछ लीजिए, यू वांट मी टू से समथिंग, you want me to interfere in your personal life, you want me to say something to your husband on your behalf. If the person is saying yes, then move, otherwise no.
गिव अ लिसनिंग, ट्राई टू गिव अ लिसनिंग. बहुत मुश्किल होता है लिसनिंग देना, बहुत बहुत मुश्किल काम होता है. और लिस्टिंग में वही तो लगता है कि वो अपनी नेगेटिव सारी वाइब्रेशंस आपके अंदर डाली जा रही है गलत बोल बोल के. हम क्यों सुने उसकी नो नेगेटिव? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. आपको दोनों कान खुले रखने हैं. मेडिटेशन में आप क्या करते हो, आप अपने पूरे माइंड को ओपन रखते हो. थॉट्स आते हैं, थॉट्स जाते हैं. व्हेन यू होल्ड देम, अब क्या होता है, सामने वाले ने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, नेगेटिविटी आती है. वो कैसे आती है? सामने वाले ने आपको अपनी बात बताई, अपनी बहू की बात बताई. यू स्टार्ट कोरिलेटिंग दैट विद योर डॉटर इन लॉ. यू स्टार्ट कोरिलेटिंग, अच्छा ये वैसा हुआ तो ये तो कुछ कुछ कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है. वी स्टार्ट कोरिलेटिंग द थिंग्स. ये उसकी प्रॉब्लम है, उसने, यू हैव टू बिहेव लाइक अ वॉश बेसिन. इट्स वेरी डिफिकल्ट बट यू हैव टू बिहेव. यहाँ पे सामने वाले ने वॉमिट किया, यू हैव टू फ्लश. इट इज डिफिकल्ट बट डोंट गेट कनेक्टेड विद द पर्सन विद द प्रॉब्लम. अदरवाइज तो फिर काउंसलर्स तो थोड़े दिन में बीमारी पड़ इसलिए तो जाएगी. बनते नहीं हम. ऐसा नहीं करना है आपको. सामने वाले की Thank you. काउंसलिंग डजंट मीन दैट यू हैव टू बी इनसाइड द पेन. आप सुनो, सुन के बस उसको वहीं तक. Absolutely right. Thank you. Here I'd like to say another thing, Moini ji, that you are going to listen to a person. If you're not close to the person, if you don't have to listen to the person, then don't listen to that person. But you will only be forced to listen, or you will have to listen where the relationship is such that you can't help but listen. Otherwise, why listen? That's the kind of. Yeah. आई थिंक मोहिनी जी शायद ये तो नहीं पूछना चाहती थी साथ में कि मतलब कोई नेगेटिविटी हमेशा बोलता रहता है तो उसको सुने कि ना सुने, या उसको हाँ. अपना कर दे. मतलब हाँ, यही कह रही हूँ ना मैं. I'm very conscious about negative things. नहीं, अगर आपसे नेगेटिव कोई कह रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस है कि वो आपसे कह सकता है, इसलिए कहिए अनुराधा. नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू डिफर इन दिस. अगर आपको ऐसा, देखिए हर पर्सन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है. कई बार हम बहुत जल्दी किसी के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, किसी के पेन से स्पेशली कैरिड अवे हो जाते हैं. अगर आप कॉन्शियसली ये बात जानती हैं कि किसी का पेन सुन के आपको वो पेन फील होने लगता है, बिलीव मी, डोंट डू दैट. आप वो लिसनिंग से हट जाइए, बिकॉज ये आपके बस में नहीं है. ये हमारी बॉडी का इंटरनल सिस्टम होता है जहाँ पे कई बार हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं उस पेन को. कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के अंदर ये भी प्रॉब्लम होती है, वो किसी को फिजिकल पेन में देखते हैं तो वो पेन उनको कुछ शुरू हो जाता है. दे फील ब्लीडिंग से वो लोग परेशान हो जाते हैं, ब्लड से परेशान हो जाते हैं. सो नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस. आपको लगता है कि वो नेगेटिविटी आपके ऊपर कैरी हो रही है, यू आर फ्री टू मूव फ्रॉम द प्लेस. प्लीज डू इट, क्योंकि समटाइम्स दिस सिचुएशन इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. सो ऐसे में लिसनिंग देने की जरूरत नहीं है. आप सामने वाले से बोल दीजिए, कुछ भी करके, आप प्लीज करके, कैसे भी करके, यू जस्ट मूव. ठीक है, थैंक यू. अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल. या यस. और कोई है? No, it was a lovely session. Anuradha ji, I would like to appreciate you on all the fields. जितने भी आपने एग्जांपल्स दिए हैं वो हर एक के लाइफ से कहीं ना कहीं अटैच हो रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. I really like it. थैंक यू. और Anita Bharadwaj wants to ask something. Yeah, please go ahead. I'll just unmute her. Anji Anita, you flow. Ritu ji, I want to ask from Anuradha ji. Sometimes आप 100% देते हैं अपना, पर सामने वाले पे तब भी कोई इफेक्ट नहीं होता. वो बताइए अनुराधा. एग्जैक्टली इसीलिए मैंने बोला कि आप बिल्कुल एक अच्छे भाव से आप कर रहे हैं. बिल्कुल 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 बिल्कुल. यू आर डूइंग योर 100%. देखिए, हाँ देखिए, रिलेशनशिप कभी भी अनकंडीशनल नहीं होता. हम जो ये वर्ड यूज करते हैं ना कि मदर का लव, जनरली टॉकिंग, नॉट अबाउट द रिलेशनशिप. जनरल यू टॉक नहीं. आप जहाँ पे भी अपना 100% देंगे वहां एक रिलेशन तो मेंटेन होगा. चाहे वो आप 100% सिलाई में दे रहे हैं, सिलाई कढ़ाई कर रहे हैं, आपने 100% सिलाई करी तो उस थ्रेड और पेपर के साथ में या कपड़े के साथ एक रिलेशन डेवलप हो गया. तो रिलेशन वर्ड तो हर जगह होगा. तो जब आप ये बोलते हो कि मैंने अपना 100% दिया लेकिन सामने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या सामने वाला मेरी बात नहीं सुन रहा है, डोंट स्टार्ट जजिंग योरसेल्फ देन. हम विमेन में, खास तौर से फीमेल्स में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमको हर चीज का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है. हम कैसी माँ है ये हमारा बेटा हमको बताता है,
हम कैसी वाइफ है ये हमारा हस्बैंड हमको बताता है, हम कैसी बेटी है ये हम अभी तक प्रूव करते रहते हैं कि वेदर वी आर अ वेरी केयरिंग डॉटर और नॉट. हम हर जगह जजमेंटल होना शुरू कर देते हैं. सो व्हेन यू आर गिविंग That's right. व्हेन यू आर गिविंग योर 100%, आप अपना काम कर रहे हो 100%. अब जिस भी रिलेशनशिप में आपने बॉस के, एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर के, XYZ आपने वो 100% डाला है, सामने वाला 0 डाल रहा है, तो भी वो बट के 50% तो आपके पास आने ही आने हैं. 0 आपके पास कभी नहीं आएगा, बट के वो वापस आएगा 50%. नाउ क्वेश्चन कम्स, किसकी लाइफ Thank you. Now इंपॉर्टेंट I है? got the answer. Thank you very much. No, Thank many you. a times we feel we are giving 100%, but actually that is not 100%. The other person is not feeling it that way. चुप हो जाओ और क्या करोगे? दूसरा पर्सन कितने परसेंट डाल रहा है, यू कैन नॉट कंट्रोल. यू कैन Yes, ओनली I कंट्रोल agree योर with your answer, कंट्रीब्यूशन. Anuradha ji. पर एक चीज और है Thank ना, you हम very ये भी much. बोल सकते हैं कि वो उसकी फितरत है, जो फितरत चीज होती है वो उसकी फितरत है. हम अपने को क्यों, why if we think we are giving 100%, right? So बस. if the other person is not doing, so that person's एक तरह से प्रॉब्लम, उसका नेचर है which he or she doesn't want to give. Use the third tool, accept the person as the person is. As a person is, कि वो उसका है, And let him be another like thing, that, and you give whatever you want to give. Because you and want to another become thing, powerful. change yourself. You cannot change the world. Change yourself. It's very difficult to change. You know what you are, you Change should be. yourself. No, we can change ourselves. Yes, It is we, not difficult. You It is in our yourself hands. is very empowered. we have another question coming up. Change according to But the I am person. satisfied with your answer, Anuradha ji. 50% तो आएगा ही, कभी ना कभी. Thank you very much. We have another question coming up. Anuradha ji, go ahead. Go ahead. I want to. Hello, Anuradha ji. जी. Yeah, We please. really had a lovely session with you, and thank you, Mala ji, for making me a part of it. And I think it was really wonderful. And small from my side, I feel that, after listening to you probably for 45 minutes, it was so easy to change ourselves. But at times, to change others, probably one life also is not enough. Exactly. Whole life we cannot change another person, but within few minutes we can change ourselves and become wonderful human beings as we have become today. We can't change another person. We only have to learn to change ourselves a little bit. Exactly. That's what. And it's very easy to change ourselves, I think. Yes. You have to be in your present. That's it. If you are quiet and you do not reply or judge others, then that means you're changing yourself. It is easy. If you are feeling empowered, you are feeling powerful, then it means yes. But unfortunately, we try to change others. So that is a big blunder what we try to make, and we become unhappy. Madhuji, do you have a question? Madhu Babaji, do you have a question? Oh. Ladies, questions from anybody more? No, thank you. Anybody more questions? I'm sure we all have a lot of relationship problems here, there. And I don't want to say daughter-in-law, mother-in-law. I don't have a daughter-in-law, thank God. But so I'm out of it just. So, Yeah. Can I ask one question? yeah, 100%. I would just repeat maybe like Anuradha ji said that supposing we are not meant to react and if we say something, the other person is not meant to react. But isn't it that it creates a kind of barrier in relationships if we are honest and more formal? Isn't it better and cleaner to have a relationship like that, or just be formal and diplomatic? Okay. Anuradha ji, I'd like to say something here. You give us परसों दे दूं. I'd like to say from my own experience. वो गमले भी लगाने हैं. So many times when we ourselves are in a problem, and if we have somebody who just say it to, by the time you finish saying your problem, you have often got the solution yourself. You know what step you took wrong or what happened, and at that time you don't want that person to be judgmental and tell you anything because you have
by the time you finish it, you learn yourself that, oh yes, that was not right. What I'm saying is not That is pouring. what this is how I should have done. Over Yeah, to that you, is pouring. Over to you, Now I Anurag. want to answer the question. उन्होंने एक word use किया that this type of relationship is formal. He said that this type of formality वाला relationship, अगर हम किसी को आपको why we feel this, that unless and until we don't give suggestion to someone, the relationship is formal. No, unless you sometimes you need a suggestion also. No, the need should be posted by the person itself. हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि सामने वाले को हमारी जरूरत है. Hey, I'm talking of myself. Supposing I want a simple. Then you have to say very clearly to the person. Then you have to say very clearly to the person that please, I need your suggestion because you are more, responsible or more experienced. So I need your suggestion. Sometimes we need ना technical help चाहिए होती है, financial में हम कहीं अटकते हैं, we need actually help. But जब emotional blockages की बात होती है तो usually we don't need. So it all depends. अगर आपको चाहिए वो help तो go and tell the person, I need your help. Because Don't if wait every for the other person. हम बात ये कर रहे थे कि हमें कितना सजेशन देना है, हमें कितना सजेशन देना है, बट अगर बात इस बात पे आती है कि आपको कितना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी क्लियरली. देखिए, अगर ये चीज हस्बैंड वाइफ के लिए हो रही है तो लेट मी टेल यू, जो मेल्स होते हैं, कभी हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे अगर कोई सेशन करेंगे तो इस चीज को मैं और ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करूंगी. बट जो मेल होते हैं ना, दे आर ऑलवेज ट्रिगर्ड, दे आर ऑलवेज ड्रिवन बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स. फीमेल्स आर ऑलवेज ड्रिवन बाय इमोशंस. अगर एक मेल को अपनी फ्रेंड से 100 रुपए लेने हैं तो डायरेक्ट बोलेगा 100 रुपए है क्या यार, मुझे चाहिए. बट हमको अगर किसी से लेने हैं तो हम 10 बात घुमाएंगे. अरे पता है इस बार ज्यादा खर्चा हो गया, अरे पता है ये. सो वी आर, हमारी जो पर्सनालिटी है ना एक फीमेल की, वी आर डिजाइन्ड इन दैट वे दैट वी नेवर से थिंग्स स्ट्रेट. बट अ मेल इज डिजाइन्ड इन दैट वे दैट दे ऑलवेज से स्ट्रेट. अगर आपको किसी मेल से कोई सलाह लेनी है, स्ट्रिक्टली डायरेक्टली बोलिए, I need your help. हम यहीं पे फंस जाते हैं कि हम अपनी तरह से सोचते हैं कि अच्छा मुझे पान खाना है तो मेरे हस्बैंड को पता होना चाहिए कि मुझे पान खाना है. Not possible. So you have to ask clearly the other person that I need your help. तो जी मुझे एक बात और पूछनी है, अगर आप परमिशन दें. हाँ पूछिए. हाँ जी. अनुराधा जी से. अनुराधा जी, अगर सामने वाला मेल और फीमेल बिना जाने आपको बहुत कुछ गलत कह देता है और उसको पता ही नहीं और बोलता रहता है गलत गलत, तो उसका क्या इलाज है? आर वी आर टिश्यू पेपर कि हमारे ऊपर पानी का छींटा पड़ेगा और हम शैटर हो जाएंगे. जिसको कहते हैं ना कि अगर कई बार जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ कहती है, बिना सोचे समझे. हाँ बिना सोचे समझे मेरी मदर इन लॉ कहती है कि अच्छे से तैयार होके हाँ जाओ. आज आप में से केवल 1 या 2 ही मुझे पर्सनली जानते हैं. क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने कान में इयररिंग्स हीरे के नहीं पहने? क्या फर्क पड़ता है? जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे पास हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं वो नहीं भी जाने तो क्या फर्क पड़ता है? दिस इज एज सिंपल एज दिस. जो आपको जानता ही नहीं है, कई बार आप हर्ट को अलाउ करते हो बिकॉज आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो. द अदर पर्सन इज सेइंग दिस because this. उसने जो भी बोला, you know that the other person doesn't know you. You are allowing the other person to hurt you. अब आपको अपने घर में कचरा आने देना है तो दरवाजा तो आपको बंद करना है. अगर आप दरवाजा ओपन रखोगे और फिर बोलोगे कि घर में गंदा हो गया तो nobody can help. हवा तो बहेगी, आंधी तो बहेगी, आपको अपना दरवाजा बंद करना है. And you know that the other person doesn't know you. Then तो फिर कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए. Okay. Try to think in that way. Try to think in that way. जो आपको जानता ही नहीं वो कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है, और जो जानता है वो जानता है कि आप कैसे हो. दोनों चीजें हैं. Thank you. Thank you so much. Anybody for questions?
Thank you. Mamta ji actually wants to ask इतना something. क्लियरली सब समझा दिया है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस बारे Show में. your face, Mamta ji. We can't see you properly. Now, No, on. ममता जी आप दिख नहीं रहे हो. Now yes, but slightly better. पूछेगा. हाँ better. चलिए पूछिए. भाई देखिए अनुराधा जी, आपने तो मुझे सोते से जगा दिया पहली बात. दूसरी बात, आपने जो मुझे बताई 4 टूल्स के बारे में, उनमें जो पहला टूल लिसनिंग वाला वो मुझ में बहुत कम है, और जो दूसरा टूल है वो मेरे में भी है, तीसरा चौथा है, पर पहला बहुत कम है. तो क्या आप सोचती हैं कि ये पहले के कम होने से मेरी जिंदगी थोड़ी दुश्वार है, तो मैं चेंज करूं अपने आप को? Such decisions, no. My role is to empower you. ये तो Right. हम समझ रहे हैं. आप अगर सोते से जाग गई हैं तो definitely you will be in action. I completely know that you will be in action. चलिए तो फिर अब लिसनिंग की कैपेसिटी बढ़ाती हूँ. बाकी तो सब उम्र के साथ में काफी इम्प्रूव हो गई हैं, ये बताऊं आपको. पर ये जो लिसनिंग वाली है, ये जरा मुश्किल से हो रही है. अपना कहने की इच्छा बहुत रहती है. I understand. It's very tough to listen. Very very tough. हमें लगता है कि Yeah. ये सबसे बेकार का काम है, हम क्या चुपचाप बैठ के सुनते रहें, but actually ये सबसे टफ काम है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, आपने ABC का क्या बताया था अनुराधा जी? A तो आपने बताया appreciate, और B appreciate And accept. before correction, acceptance before criticizing. अच्छा, सुषमा wants to ask a question. Go ahead, सुषमा. अनुराधा जी, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर एक बार लिसनिंग में जैसे सुनना शुरू करो ना, तो बार बार लोग सुनाते रहते हैं, तो बोरिंग लगता है फिर. सुषमा, तुम्हें तो हम हर बार सुनते हैं, तुम कैसे ऐसी बात कह सकती हो? हर बात को तो सुनना ही होगा. आपको तो अब लिसनिंग पड़ेगा, करनी है ना ममता जी. Good question. एक ही, हाँ, ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमको लोग जो है वो एक ही चीज बार बार कहते हैं. कुछ आपकी वॉइस नहीं आ रही. अब औरों को आ रही है आपकी वॉइस? जी आ रही है. अच्छा, मुझको नहीं. Okay. Sometimes it happens कि एक आदमी जो है वो कुछ बोलता है, अपनी प्रॉब्लम कहता है, जैसे सास बहू की प्रॉब्लम है या कुछ भी XYZ, मेरे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, वो आके आपको बोलता है, आपने उसको अच्छी लिसनिंग दे दी. नाउ यू फील दैट पर्सन इज गेटिंग वेकेंट. अब वो खाली हो गया है, वो कुछ नहीं आएगा. नेक्स्ट डे वो वापस फिल होके आ जाता है, फिर से वही सारी बातें शुरू करता है. इट हैपेंस, ये बिल्कुल होता है. कुछ भी नहीं करना है आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है. आपको अगर लग रहा है कि दिस इज समथिंग इज बॉदरिंग यू, यू कैन से द पर्सन दैट हम इस बारे में कल बात कर चुके हैं, कैन डू यू वांट मी टू रिपीट दिस, डू यू वांट मी टू अगेन लिसन दिस. आप उसको, कई बार लोग अनकॉन्शियसली इस बात को रिपीट करते हैं, उनको नहीं पता होता है, और वो जो पोरिंग करते हैं उससे वो खाली भी नहीं हो पाते, वो साइकिल चलती रहती है. You are not a counselor, you are not bound to listen them, so you can say clearly कि कल हम इस बारे में बात कर चुके हैं, you want me to again listen, तो आप बोलो मैं सुन रहा हूँ. वो अपने आप ही उस चीज को रोकते हैं. आप सजेशन दोगे तभी भी वो आपके पास आएगा. Okay. Thank you. Thank her and thank her for a very beautiful session. You really, thank you. Very beautiful session. Food for thought. And I think the biggest thing, that biggest takeaway over here is that first we should just quietly listen and not hear. Listening is very important. Understand that sometimes the person, just like you said, wants to vomit out, that's all, doesn't want any advice. So we all feel that unless we have given our unsolicited advice and criticized or something, we have not done our duty. But actually that is where our problem lies. Isn't that what the whole situation is? Correct. Somewhere. Yeah. And I think, like you said, it is for us to give 100%. We want to be the leader, so we have to give the 100%. We also have to accept what the other person is and start off from handling from there. You know, listen accordingly. Somebody is short-tempered, somebody is very patient,
accordingly handle that person. Well, thank you, Anuradha ji. Thank you for a very, very Thank useful you. session. रितु जी, मृदुला जी Thank कुछ you, पूछना Anuradha चाहती ji. Yes, Mridula ji. Thank you, Anuradha ji. एक minute. Thank you so Thank much. you. Thank you. We really Thank you. enjoyed Thank you, it. Thank you, Mala ji and Ritu ji. I'm coming Thank to you. that. But Thank you. Thank you. let me do my Thank you. thank yous first. Then you all thank. Mala and me are all right. I'm all part of you. Welcome. I'm very happy. Happy to tell you we were 34 people on this session, which is a large thing. And everybody came online because this is a very useful session. Thank you very, very much, Anuradha ji. Thank you, Ritu ji and Mala ji. Thanks a lot. So thanks of Mala for really, suggesting. it's a fruitful session. Anuradha. Thank you for Thank you so much. Radha Jaju. Thank you very much. Thank you. Thank you. Namaste Thank to you, all. Anuradha. Namaste. Thank you. Mala. Thank you, Ji. Thank you. Shall we end the meeting? Yes. Yeah. Yeah, please. Thank you very much. Okay. Okay. Thank you. Bye. Thank you, Ritu Bye. ji. Bye.